Assalamualaikum students, I hope you're all doing fine. So today is our lesson number 1 of chapter number 4, Hazrat Asma Raziyallah Anha, from the English textbook of class 9. So students, by the end of the lesson you all will be able to know about the life of Hazrat Asma Raziyallah Anha, know how the Muslim women served the cause of Islam, know how the Muslim women kept up their integrity in the times of hardship, learn about honesty, truthfulness, valor, and generosity, learn about the use of punctuation marks, recognize prepositions of time, know about the essentials of paragraph writing. Alright, so now before starting our translation, let's do a little warm up activity. So I would like to ask you all that what do you know about हिजरत मदीना? क्या आप लोगों को कोई आइडिया है कि हिजरत मदीना किसको कहते हैं? वेल हिजरत मदीना उस जर्नी को कहते हैं व्हेन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही माइग्रेटेड टू मक्का फ्रॉम मक्का टू मदीना. ठीक है, इस जर्नी को हिजरत मदीना कहते हैं. ठीक है, who accompanied the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम in this journey. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने अकम्पनी किया था? आई एम श्योर आपको पता होगा कि हिज बिलविड एंड क्लोज कंपेनियन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो अकम्पनी द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दिस जर्नी ऑफ हिजरत मदीना. राइट. So question number 3 is that have you ever heard the role of a Muslim woman in this venture? अच्छा, इस जर्नी के अंदर एक खातून थी जिनका बहुत बड़ा किरदार था और वो थी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा. ठीक है, उनका इस जर्नी के अंदर, इस वेंचर के अंदर उन्होंने अपनी बहुत यूज़फुल सर्विसेज दी थी और उनका बहुत बड़ा किरदार था और इसके बारे में ही हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा है. सो वी आर गोइंग टू रीड मोर अबाउट हर लाइफ and herself. Alright, so now let's move on to the translation of the chapter. So I am going to read the text and I am going to translate it in Urdu. So please open page number 33 of your English textbook. Today we are going to read paragraph 1 to 2. Okay? So now let's begin. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq Raziyallahu anhu migrated from Makkah to Medina in the year 622 AD. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने 62 ईस्वी में मक्का से मदीना 622 ईस्वी में मक्का से मदीना हिजरत फरमाई. When the chiefs of various tribes of Makkah came to know about the migration of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, they got furious. जब मक्का के मुख्तलिफ कबाइल के सरदारों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की हिजरत के बारे में पता चला तो वो शदीद गुस्सा हो गए. The chiefs were determined more than ever to find them out. अच्छा, सरदार उनको ढूंढने में पहले से भी ज़्यादा पुरअज़म हो गए. They offered huge rewards and bounties for their capture, dead or alive. उन्होंने उनकी मुर्दा या जिंदा गिरफ्तारी के लिए बहुत बड़े इनामात और मालो दौलत की पेशकश की. Now let's move on to paragraph number 2. The preparation for this journey was made at the house of Hazrat Abu Bakr Siddiq Raziyallahu anhu. इस सफ़र की तैयारी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के घर पर हुई. हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा rendered useful services in this regard. हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस सिलसिले में बहुत मुफीद खिदमात सरअंजाम दी. She prepared food for this journey. उन्होंने इस सफ़र के लिए खाना तैयार किया. She tied the food on the camel back with her own belt as nothing else could be found. अच्छा, उन्होंने ऊँट की पुश्त पर यानी कि उसकी बैक पर अपने कमरबंद से खाना बांधा क्योंकि और कुछ मिला नहीं था.
For this service she was given the title of Zatun Natakin by the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. अच्छा, इस खिदमत पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आप रज़ी अल्लाह अन्हा को ज़ातुल नकातीन का लक़ब मिला. ठीक है. सो स्टूडेंट, दिस वाज आवर ट्रांसलेशन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वर्ड्स मीनिंग्स ऑफ द चैप्टर. सो आई एम गोइंग टू रीड द वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स इन इंग्लिश, लेकिन साथ साथ मैं आपको उर्दू में भी इनके मीनिंग्स बताऊंगी ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आए. सो नाउ लेट्स बिगिन. कंपेनियन, फ्रेंड. अच्छा, उर्दू में इसका मतलब होता है साथी, सहाबी, दोस्त होना. ठीक है. दोस्त होना, साथी होना. माइग्रेटेड, इमिग्रेटेड. ठीक है. अच्छा, इसका मतलब होता है इमिग्रेटेड का मतलब हिजरत करना. वेरियस, वेरियस का क्या मतलब है? डिफरेंट. ठीक है, यानी कि मुख्तलिफ होना. फ्यूरियस, वॉयलेंट. इसका मतलब है गज़बनाक होना. डिटर्मिन्ड, रेजोल्यूट. इसका मतलब है पुरअज़म होना. ऑफर्ड, प्रेजेंटेड, यानी कि पेशकश करना. ह्यूज, अनर्मस, यानी कि बहुत बड़ा होना. बाउंटीज, रिवॉर्ड, इनामो इकराम या फिर तोहफे. ठीक है. कैप्चर, अरेस्ट, यानी कि गिरफ्तार करना, यानी कि पकड़ना या किसी को गिरफ्तार करना. प्रेपरेशन, अरेंजमेंट, यानी कि तैयारी करना. रेंडर्ड, डिलीवर्ड, डिलीवर्ड मतलब कि सरंजाम दी. बेल्ट, स्ट्रिंग. अच्छा, इसको कमरबंद कहते हैं. ठीक है. एक बेल्ट होती है, उसको उर्दू में हम कमरबंद कहते हैं. पेरिलियस, डेंजरस, यानी कि ख़तरनाक होना. डेलिकेट, सेंसिटिव. सेंसिटिव मतलब बहुत ही नाजुक होना. ठीक है. सो दीज वर द वर्ड्स एंड मीनिंग्स ऑफ द चैप्टर. बाकी रिमेनिंग हम बाकी लेसन्स में पढ़ेंगे. So now let's move on to the question answers of the chapter. So I am going to read the question and their answers from the exercise. You have to learn the answers of these questions. Question number 1. What happened when Abu Jahl asked about Hazrat Abu Bakr Siddiq Raziyallahu Anhu? Answer. Abu Jahl asked Hazrat Asma Raziyallahu Anha about her father. Instead of answering his question, she rather asked how she could know about him. At this reply, Abu Jahl got furious and slapped her face. Question number 2. Why was Hazrat Abu Quhafa Raziyallahu Anhu worried? Answer. He thought that his son Hazrat Abu Bakr Siddiq Raziyallahu Anhu had taken all the wealth with him, leaving him and the family helpless. So he was worried about their food and survival. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर. अब इसमें हमारे पास बी पार्ट है. सो व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू रीड पैराग्राफ नंबर 4 ऑफ द लेसन एंड आइडेंटिफाई टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल्स एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ. अब चैप्टर नंबर 4 का आप अगर पैराग्राफ नंबर 4 ओपन करेंगे, ठीक है, तो उसमें से हमने 3 चीज़ें निकाली हैं. पहला है उसका टॉपिक सेंटेंस, देन उसकी सपोर्टिंग डिटेल्स और एंड पे कंक्लूडिंग सेंटेंस. सो लेट्स डू दैट. टॉपिक सेंटेंस. On the night of the migration, a tribal chief of disbelievers, Abu Jahl, in a fit of fury, headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq Raziyallahu Anhu home. Supporting details अब इसमें क्या आएंगी? He began knocking at the door violently. Addressing Hazrat Asma Raziyallahu Anha, he demanded, "Where is your father?" She politely replied, "How would I know?" This response shows the wisdom and courage of Hazrat Asma Raziyallahu Anha. She didn't make a statement that would give him a clue. She simply posed a counter question that infuriated Abu Jahl. Okay, so concluding sentence हमारे पास है कि he slapped Hazrat Asma Raziyallahu Anha's face so hard that her earring fell off, but she remained steadfast and did not reveal the secret. ठीक है. अब इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन भी हम पढ़ेंगे आगे लेसन्स में. सो नाउ
प्लीज़ ओपन पेज नंबर 39 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। अब इसके अंदर आपको कैटाफोरिक रेफरेंस और एनाफोरिक रेफरेंस का बताया गया है, साथ में आपको एग्जांपल्स भी दी गई हैं। सो कैटाफोरिक रेफरेंस क्या होता है? एन एक्सप्रेशन दैट रेफर्स टू लेटर एक्सप्रेशन इन द डिस्कोर्स इज कॉल्ड कैटाफोरिक रेफरेंस। ठीक है, अब जो किसी सेंटेंस के अंदर जो लेटर एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, उसको हम कैटाफोरिक रेफरेंस कहेंगे। और एनाफोरिक रेफरेंस क्या होता है? एन एक्सप्रेशन दैट रेफर्स टू एन अर्लियर एक्सप्रेशन इन द डिस्कोर्स इज कॉल्ड एनाफोरिक रेफरेंस। ठीक है, जो अर्लियर एक्सप्रेशन होता है एक सेंटेंस में उसको हम एनाफोरिक रेफरेंस कहेंगे। सो डिटेल में अभी हम जाएंगे। सी, सो वी हैव दिस एक्सरसाइज जिसको हमने सोल्व करना है। टेल वेदर द रेफरेंस गिवन इन दीज सेंटेंसेज इज एनाफोरिक और कैटाफोरिक। अब हमें ये सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसमें हमने बताना है कि एनाफोरिक रेफरेंस कौन सा है एंड कैटाफोरिक कौन सा है। सो लेट्स बिगिन। सेंटेंस नंबर 1 है, Abu Jahl, the chief of the disbelievers, in a fit of fury headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq's anhu home. He began knocking at the door violently. अच्छा, अब ये एनाफोरिक होगा, क्यों? क्योंकि इसमें अबू जहल जो है वो अर्लियर एक्सप्रेशन है। ठीक है, अर्लियर एक्सप्रेशन है, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा है कि अर्लियर एक्सप्रेशन होता है एनाफोरिक। ठीक है, तो अबू जहल जो होगा वो होगा अर्लियर एक्सप्रेशन, इसीलिए ये सेंटेंस एनाफोरिक है। सेंटेंस नंबर 2 है, हर ग्रैंडफादर अबू कुहाफा रजी अल्लाह अन्हु वाज अ डिसबिलीवर एट दैट टाइम। ठीक है, अब ये कैटाफोरिक होगा, इसमें लेटर एक्सप्रेशन कौन सा है? अबू कुहाफा लेटर एक्सप्रेशन है। ठीक है, सेंटेंस नंबर 3, व्हेन असलम वाज प्लेइंग क्रिकेट ही हर्ट हिज हैंड। ठीक है, अब इसमें असलम एनाफोरिक एक्सप्रेशन है, यानी कि एनाफोरिक है ये, अर्लियर एक्सप्रेशन इसमें असलम है। बिफोर शी फिनिश्ड द वर्क नीलम चेक द मिस्टेक्स वंस अगेन। अब नीलम इसमें जो है वो लेटर एक्सप्रेशन है, इसीलिए ये कैटाफोरिक होगा। सेंटेंस नंबर 5 है, अनीस थ्रू द स्टोन ही ब्रोक द विंडो। ठीक है, अनीस इसमें जो है वो अर्लियर एक्सप्रेशन है, इसीलिए ये एनाफोरिक होगा। सेंटेंस नंबर 6 है, व्हेन शी एंटर्ड द रूम ज़ेबा वाज सरप्राइज्ड टू सी सो मेनी गेस्ट। अब इसमें ज़ेबा जो है वो हमारे पास लेटर एक्सप्रेशन है, इसीलिए ये कैटाफोरिक होगा। सेंटेंस नंबर 7 है, द सिटी ऑफ गार्डन्स लाहौर इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स हिस्टोरिकल प्लेसेस। ठीक है, अब इसमें जो लाहौर है दैट इज़ द लेटर एक्सप्रेशन, इसीलिए ये कैटाफोरिक होगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड द एनाफोरिक एंड कैटाफोरिक रेफरेंस। ठीक है, नाउ लेट्स रैप अप आवर लेसन बाय मूविंग ऑन टू द वोकैबुलरी पार्ट ऑफ द चैप्टर। इसमें ए हमारे पास क्वेश्चन है, दैट चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। अब ये अंडरलाइन वर्ड्स हैं, इनके हमने जो करेक्ट मीनिंग्स हैं उनको हमने चूज़ करना है। सो लेट्स बिगिन। इट वॉज सो डेलिकेट सिचुएशन। सो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, डिफ़िकल्ट, ईजी, सेंसिटिव, फ्रेजाइल। तो डेलिकेट का मतलब होता है सेंसिटिव। ठीक है, अबू जहल बिगेन नॉकिंग एट द डोर वायलेंटली। वायलेंटली का मतलब क्या होगा? फोर्सफुली। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सेंटेंस नंबर 3, शी सिंपली पोज्ड अ काउंटर क्वेश्चन दैट इन्फ्यूरिएटेड अबू जहल। ठीक है, अब इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, सो द राइट ऑप्शन इज़ एनरेज्ड, सी वाली ऑप्शन है। इन्फ्यूरिएटेड का मतलब होता है यानी कि गुस्सा करना, तो एनरेज्ड उसका मीनिंग होगा। सेंटेंस नंबर 4 है, शी रिमेन्ड स्टेडफास्ट एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट। ठीक है, अब इसमें स्टेडफास्ट का मीनिंग है फर्म एंड रेजोल्यूट। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज आवर लेसन नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 4, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द वीडियो लेसन। अल्लाह हाफिज़।